آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور خدا کا پاک کلام مبارک کلام، لا تبدیل کلام، زندگی بخش کلام، آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں، یسوع مسیح نے کہا میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ پورا ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ یہ ابدی کلام ہے، خداوند کا زندہ کلام ہے، سچا کلام ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب 7ویں اور 8ویں دونوں آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ خدا کے کلام جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا کی رہنمائی میں نے محسوس کیا کہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں روح القدس ایک شخص ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، تینوں کا جلال، کام، ذات، ماہیت ایک ہی ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں یہ سیکھا، پہلا حصہ تھا دا ورک آف دی ہولی گوسٹ، اور ہم نے سیکھا خدا کے پاک کلام میں سے جو دونوں آیات میں نے آج بھی پڑھی ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ گواہی دینے کے لیے قوت۔ تھوڑا سا دہراتا ہوں، ڈیٹیل نہیں دیتا کیونکہ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا۔ قوت جو ملے گی کس لیے ملے گی؟ گواہی دینے کے لیے، اور قوت ملے گی شیطان پر فتح پانے کے لیے، آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے۔ پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے، کامیاب روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے خداوند ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ پاک روح کا ہی کام ہے۔ ہم تو کمزور ہیں لیکن روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پاک روح کا ایک یہ کام بھی ہے، وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، کہ ہم بھول نہ جائیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ پاک روح ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں کنٹرول کرتا ہے، اور جب ہم اس کی ہدایت میں چلتے ہیں تو فتح پاتے ہیں، اور تب ہی خدا کے فرزند ہم ہوتے ہیں اور بنتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ روح القدس کے جو پھل ہیں ان میں جو آخری پھل ہے لکھا ہے پرہیزگاری،
तो परहेजगारी के लिए हमने इंग्लिश वर्जन में ये सीखा कि परहेजगारी का जो मतलब है वो है सेल्फ कंट्रोल। पाक रूह हमें कुव्वत देता है और हम सेल्फ कंट्रोल होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। मिसाल सीखी कि जिस तरह गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसकी कोई ब्रेक ही ना हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर रूहानी जिंदगी में कंट्रोल ना पाक रूह करता हो, ब्रेक फेल हो, तो रूहानी हादसात बहुत हो जाते हैं, तो कामयाब जिंदगी नहीं रहती। ये रूल कुछ का काम है, ये बाइबल में से हमने सीखा। और फिर हमने ये भी सीखा था कि वो सच्चाई की राह दिखाता है। फिर हमने ये भी सीखा था कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि यीशु मसीह ने कहा वो मेरी ही बातें कहेगा, जो कुछ मुझसे हासिल करेगा वो ही तुम्हें कहेगा। ये यूहन्ना की इंजील 16 में 12वीं आयत से 14वीं आयत तक हमने सीखा था कि वो कुछ अपने से नहीं कहता। यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो मेरा बाप मुझे कहता है मैं वो कहता, मैं भी अपने तरफ से कुछ नहीं कहता। तो पाक रूह के बारे यीशु ने कहा वो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, कोई नई बात नहीं कहेगा, कोई नया फलसफा नहीं, कोई नई तालीम नहीं, कोई नया मुकाशफा नहीं, कोई फिलासफर की नई बात नहीं है। नो नो नो, कैसी हम आहंगी है बाप बेटे रूह कुद्स में, कैसी यूनिटी है बाप बेटे रूह कुद्स में, कैसा इसलिए तसलसल है खुदा के पाक कलाम में। पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब था। कैसी खूबसूरती है कि बाप भी वही बात कहता है, बेटा भी वही बात करता है, रूह कुद्स भी वही बात करता है, और फिर उसके सच्चे खादम भी वही बात करते हैं कि जो रूह कुद्स कहता है, उसके खादम भी वही बातें फिर करते हैं जो सच्चे खादम हैं, जो खुदा का कलाम कहता है, जो यीशु मसीह की बातें। वो अपने आप से कुछ नहीं कहते, कोई मसाले, कोई चटपटी बातें, कोई अमेजिश की बातें, कोई चटनियाँ वगैरह नहीं देते कि जैसे बड़ा टेस्ट तो आ जाए लेकिन अमेजिश ज़रूर हो जाए। वो सेम वही खुराक देते हैं कोई चटपटी चीज़ें जो सच्चे खादम है वो भी नहीं देते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि पाक रूह आइंदा की खबरें देता है, वो जाहिर करेगा और वो करता है कलाम के मुताबिक। फिर लिखा हमने सीखा था कि वो मददगार है। मददगार के लिए इंग्लिश वर्जन में हमने सीखा कि वो मुशीर है हमारा, मददगार है, वकील है हमारा, और हमारी शफात करने वाला है। ये मददगार के लिए अल्फाज हैं। ये जब लिखा रूह कुद्स मददगार है तो वो हमारी काउंसलिंग करता है, वो हमारी शफात करता है, वो हर तरह से हमारी वकालत भी करता है। यीशु मसीह भी हमारा वकील है, वो भी हमारा वकील है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो हमें सिखाता भी है, हमारी रहनुमाई करता है। इसका मतलब ये है। फिर हमने ये भी सीखा था, जल्दी से बता देता हूँ, कि वो दुआ में हमारी क्या करता है, रहनुमाई करता है। हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलके दुआ करता है, और फिर वो दुआ खुदा तक पहुंचती है। और यही मौसर दुआ है, और कोई तरीका नहीं है। बड़े बड़े ढंग, बड़े बड़े तरीके, बड़े बड़े कुलिये लोग बताते हैं मौसर दुआ के, लेकिन सबसे बड़ा कुलिया यह है कि रूह को साहब की रूह के साथ दुआ करे, और यही आसमान तक पहुंचती है। और आज हम सीखेंगे और कुछ बातें, जितना हमारे पास वक्त है, और ये पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा, द वर्क ऑफ द होली गोस्ट, रूह कुद्स के काम।
यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में 14वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स जो मिलेगा तुमको दुनिया हासिल नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मददगार दूंगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें यतीम छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि रूहुल कुद्स तुम्हारे लिए भेजूंगा। और पिछले इतवार की इबादत में हमने ये आयत पढ़ी भी थी कि वो याद दिलाता है, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर जब आता है तो हम अब्बा यानी बाप कह के उसे क्या करते हैं, पुकारते हैं। इसलिए हम उसके फर्जंद, रोमियो के खत में हमने आयत पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि हम यतीम नहीं हैं। रूहुल कुद्स हमें मददगार दिया गया है, और रूहुल कुद्स का एक ये काम है कि जब रूहुल कुद्स से कोई मामूर होता है तो रूहुल कुद्स ईमानदार की जिंदगी में यतीमाना रूह, यतीमाना बातें, यतीमाना रवैया, यतीमाना ख्यालात, यतीमाना लाइफ स्टाइल तब्दील कर देता है। वो मदद करता है कि तुम यतीमों की तरह बातें ना करो, यतीमों की तरह मांगो ना, यतीमों की तरह लाइफ स्टाइल ना हो, यतीमों की तरह ख्याल ना हो, बल्कि पाक रूह यतीमाना रूह को खत्म करके हमें फर्जंदियत की रूह अता फरमाता है, और हमारे अंदर से यतीमाना रूह को क्या करता है, छोटी छोटी बातों पे यतीम वैसे भी जो होते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, वो छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा महरूमियत महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जिनका माँ बाप है वो महरूमियत का शिकार नहीं होते। अगर उन्हें कुछ कहा जाए, अगर कुछ हालात ऐसे आ जाएं, अगर आजमाइश ऐसी आ जाए, वो कोई फील नहीं करते। उन्हें पता है हमारा बाप है, हमारी माँ है, हम यतीम नहीं। लेकिन जो यतीम है उसे थोड़ी सी भी ठेस लगेगी, वो चिल्लाएगा, महरूमियत का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। यतीमाना रूह और सोच उसके ऊपर हावी होगी, और वो छोटी छोटी बातों पर भी बिगड़ेगा और अपने आप को महसूस करेगा कि मैं बे यारो मद। खुदा का पाक रूह जिस जिंदगी में आता है, खुदा का पाक रूह जिसके अंदर आ जाता है, वो कभी भी यतीमाना सोच, बातें, ख्याल, रवैया नहीं आता। क्योंकि पाक रूह यतीमाना रूह को खत्म करता है। देखें बहुत सारे लोग जो है उनकी दुआएं यतीमाना है, उनकी बातें यतीमाना है, सोच यतीमाना है, छोटी छोटी बातों पर महरूमियत का शिकार हो जाता है। कभी महरूमियत का शिकार होते हैं, हर किसी नहीं, वो जानते हैं कि हमारा बाप है, पाक रूह उनके अंदर है, पाक रूह ने उम्मीद देता है, पाक रूह ने कुव्वत देता है कि अब्बा यानी ऐ बाप कह के पुकारो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दुआ करो तो क्या करो, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बस
मर गए, बस ये है वो है, ये हो गया वो हो गया, छोटी छोटी बातों पर ये यतीमाना रूह है। क्योंकि यतीम को ये पता होता है कि मेरा गुनाह सुनने वाला है, मेरा कोई ना है संभालने वाला। उसे छोटी सी बात भी कर दो तो वो आंसू बहा देगा, क्योंकि उसे ये पता होता है ना कि मेरा है ही कौन, पता नहीं मेरे ना ज्यादती हो रही हो। तो खुदा का पाक रूह का ये भी काम है कि वो यतीमाना रूह को क्या करता है, खत्म कर देता है। और फिर हम एक और बात सीखते हैं। पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत लिखा है कि पाक रूह जो आता है, मैं पढ़ता नहीं लेकिन उसका मफहूम आपको बता रहा हूं। तो खुदा की पहचान में हमें बढ़ाता है और खुदा के दिल की तय की बातें दरियाफ्त करता है। यह भी उसका काम है कि पाक रूह खुदा के तय की जो बातें हैं वो भी जानता है। जब पाक रूह हमारे अंदर आता है हम खुदा को और ज्यादा पहचानते हैं। और फिर खुदा के दिल की जो तय की बातें हैं, आप इस हवाला को लिख के फिर पढ़ लें, तो हम पहचानते हैं और ज्यादा खुदा को। तो खुदा की रूह की मामूरी का एक काम ये भी है कि खुदा की गहरी बातों को जानना, खुदा के तय की बातों को जानना और ज्यादा उसे पहचानना। हम खुदा को, उसकी तय की बातों को, उसकी गहराई की बातों को हम नहीं जान सकते, लेकिन पाक रूह की इसलिए जरूरत है, अहमियत है। अगर आप कोई खुदा की तय की बातें जानना चाहता है तो उसे पाक रूह की मामूरी की क्या है, जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में आप हवाला जात लिखते जाएं। फिर लिखा है पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 24वीं आयत में लिखा है, जो उसने हमें रूह दिया है हम जानते हैं, उसी से हम जानते हैं कि वो हम में कायम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पाक रूह का एक काम यह है कि वो खुदा के साथ हमें जोड़े रखता है, हमें कायम रखता है। पाक रूह का एक काम यह है, खुदा के साथ हमें जोड़ के रखता है। पाक रूह का यह काम है कि खुदा में वो हमें कायम रखता है, वरना हम कायम नहीं रह सकते। आपने तजर्बा किया होगा, जब हम कभी भी खुदा से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, चर्च आते हैं सरगर्मी से फिर नहीं आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं फिर नहीं पढ़ते, दुआ करते हैं फिर नहीं करते, आपने फील किया होगा। आपको थोड़ा सादा तरीके से समझाता हूं। पाक रूह आपको कायल करता है, पाक रूह आपको जोर देता है, पाक रूह आपको इंस्पिरेशन देता है, पाक रूह आपकी मदद करता है कि आओ उसकी हजूरी में आओ और बाइबल मुकद्दस दोबारा पढ़ो और उसके हुक्मों पर अमल करो। वो जोड़े रखता है हमको। अगर पाक रूह की मामूरी नहीं तो फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि करीब आके ईमानदार दूर
थोड़ा 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 दूर होता चला जाता है, बेदीनी का शिकार हो जाता है, बैकस्लाइडर हो जाता है, बरगश्ता हो जाता है। और यह बरगश्ती का दौर है, बरगश्ती का जमाना है। कई लोग आए, करीब हुए, आस्ता आस्ता बेदीनी बरगश्ती का शिकार होकर खुदा को छोड़ गए। लेकिन रूहुल कुद्स का काम यह है, अगर रूहुल कुद्स की मामूरी है, अगर रूहुल कुद्स की अहमियत की हमें जरूरत है, तो रूहुल कुद्स हमें खुदा में कायम रखेगा और जोड़े रखेगा। इसलिए हमें रूहुल कुद्स की चाहत, रूहुल कुद्स की मामूरी की जरूरत को महसूस करना है। इसलिए इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ, वरना आप कमजोर हो, आप खुदा में कायम नहीं रह सकते। मुकाबला बड़ा सख्त है, आजमाइशें बहुत हैं। वैसे भी जैसे जैसे यीशु मसीह की आमद करीब होगी, मुकाबला क्या होता चला जाएगा, हाँ सख्त होता जाएगा, जंग तेज होती चली जाएगी शैतान के साथ, रूह और जिस्म के साथ। लेकिन हम गालिब कैसे आएंगे? जब पाक रूह से मामूर होंगे। हालेलुया। इसलिए पाक रूह की मामूरी के लिए भूखे प्यासे रहें और खुदा को कहें मुझे और ज्यादा पाक रूह से भर दे, और ज्यादा पाक रूह की मामूरी अता फरमा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद चाहता है कि तुम उसकी सारी मामूरी से मामूर हो जाओ। फिर हम एक और बात, रूहुल कुद्स के काम जो हैं ये तो बहुत ज्यादा हैं, चंद काम जो हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिख लें 2 तीमुथियुस पहला बाब और 7वीं आयत। लिखा है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी है। जो इंग्लिश वर्जन है दहशत के लिए वो है कि हर तरह का खौफ जो है, ऐसी रूह नहीं बख्शी, दहशत जिससे हमारे अंदर हो, जिससे हमारे अंदर खौफ पैदा हो, द स्पिरिट ऑफ फियर, उसने हमें नहीं बख्शी है। बल्कि मैंने इंग्लिश वर्जन्स को और इसके और ज़्यादा मतन के बारे में सीखने की कोशिश की, तो इसके माने ये है, दहशत का मतलब ये है कि खुदा ने हमें ऐसी रूह नहीं बख्शी, सादा जुबान में सिखाता हूं, कि हम डरपोक हों। नो, ऐसी रूह नहीं मिली। ऐसी रूह नहीं मिली कि जिससे हम शर्मीले हो जाएं खुदा के कामों के लिए। नो, खुदा ने हमें ऐसी रूह दहशत की बख्शी ही नहीं है कि हमारे अंदर डर पैदा हो, खौफजदा हो, डरपोक हो। क्योंकि डरपोक खुदा की बादशाही में, उसकी टीम में, उसकी कलीसिया में चल नहीं सकते। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो दलेर हों, क्योंकि रूहुल कुद्स जब आता है
तो डरपोक, रूह और कमजोर बातें और शर्मीलापन क्या है? जिस तरह मैं ये भी बताऊं शर्मीलापन क्या है, ये नहीं कि जो नेचुरली शर्मीले होते हैं, नो नो नो। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं इंजील से, ये है मतलब खुदा की टीम में ऐसे लोग काम नहीं कर सकते, कलीसिया में चल नहीं सकते, खुदा की फौज में नहीं चल सकते कि जो डरपोक हों, डरने वाले हों, खौफजदा हों, दहशत ज़दा हों। नो, खुदा का पाक रूह जब हमें मिलता है तो वो सारा डर, सारी दहशत, सारी वहशत, सारे खौफ, सारे शर्मीलेपन को क्या कर देता है? दूर हो। आपने देखा, और सादा ज़बान में सिखाऊं, पतरस रसूल कितना डरपोक था, बड़के बड़ी मारता था, लेकिन बड़कों से कुछ नहीं बनता। यीशु जी, उस्ताद जी सारे छड़ जान, उन्हें क्या पुत्र हुणे वेख तू जरा, उन्हें तमाशा वेख, जल्दी नाल ही वेख कि तू मेरा इनकार करना है कि नहीं, वेख जरा। तो फिर छोटी सी बच्ची ने भी कहा, हाँ भाई यीशु मसीह के साथ है, तू भी उस्ताद, तेरी बोली टोली, तेरा सारा वज़ा कथा, तेरे कपड़े लगदा है कि तू ओदे नाल दे। लेकिन बड़का खत्म। कभी कभी ईमानदार बड़का बड़ियां मार दे, और गीत भी बड़का ले गाने चाहिए क्यों नहीं? सिर देना की है, सिर देवांगे, कायम हक दी गवाही उत्ते रवांगे, असी भट्ठियां अग दियां भट्ठियां च सड़ांगे, ते जनाब आसमान चुकिया हुंदा। थोड़ी जिन्नी मुसीबत आए तो कहना भाई सेक ज्यादा आई तो दौड़ना। ओए होए 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 होए, ओ माय लॉर्ड। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं उसको, सारियां बड़का खत्म हो गई, यस, लेकिन जब पाक रूह नाजिल होता 35 कोस के दिन, वही डरपोक पतरस जो है खड़ा हो जाता है और ऐसी मनादी करता है और ऐसा उन्हें पैगाम देता है और जुर्रत दिखाता है कि 3000 लोग उसी वक्त तौबा करके यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। सारा खौफ, सारा डर, सारी दहशत, सारा शर्मीलापन खत्म हो गया, क्योंकि जब पाक रूह मिलता है तो हमें दलेरी मिलती है, उसके कामों में, उसकी खिदमत में, उसके साथ चलने में हम दलेर रहते हैं, हर बात में हम दलेर हो जाते हैं, चाहे काम मुश्किल हो। उसके घर में आने के लिए दलेर, उसकी खिदमत करने में दलेर, उसकी परस्तिश करने में दलेर। हम तो छोटी छोटी चीज़ों से तो डर जाते हैं, कहते लो जी आ गई जी बारिश, आ गई जी, डर जाओ, आज हालात नहीं ठीक है, डर जाओ। नो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि खुदा के लोग कभी किसी चीज से डरने वाले नहीं। हालेलुया, वो डराने वाले हैं, शैतान को डराने वाले हैं, वो हालात को चैलेंज करने वाले हैं। हालेलुया, वो आजमाइशों को चैलेंज करने वाले हैं। हालेलुया,
وہ شیطان کو چیلنج کرنے والے ہیں. وہ داؤد کی طرح جب 16 سال کا لڑکا تھا جاتی جولیت کو چیلنج کرنے والا ہے. ہاللیلویہ. ایسے آج داؤد خدا نے پیدا کیے, روح القدس سے مسح کیے, مخصوص کیے, بلایا ہے کہ چاہے جتنے مرضی جاتی جولیت کھڑے ہو جائیں, ڈرائیں, خوف زدہ کریں, لیکن ایماندار ڈرتے ہیں نہ. وہ کہتے ہیں میں خداوند کے نام سے آتا ہوں. جتنا مرضی تگڑا جینٹ, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی مصیبت, کتنا بڑا شیطان بن کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے, لیکن پاک روح ہمارے اندر ہے, ہم کسی دہشت سے ڈرنے والے نہیں. ہاللیلویہ. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ محبت, اور آگے کیا لکھا ہے, تربیت کی روح بخشی ہے. جب روح القدس کی معموری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے محبت کی معموری ہوتی ہے. پاک روح کا یہ کام ہے, ہمارے اندر خدا کی محبت آتی ہے. ہم خدا سے دل و جان سے, اپنی ساری جان سے, عقل سے, طاقت سے, دل سے خدا کو کیا کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اور پھر آپس میں بھی ہم پیار کرتے ہیں. جب روح ہمارے اندر آتا ہے تو روح القدس ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے, نفرت کو کیا کرتا ہے, ختم کرتا ہے. یہ روح القدس کے کام ہیں, صرف ظاہری ہی کام نہیں. کبھی کبھی ظاہری کاموں کو ہم زیادہ قبول کرتے ہیں یا جانتے ہیں یہی پاک روح کی معموری ہے, لیکن پاک روح کی معموری یہ بھی ہے کہ ایماندار محبت سے بھر جاتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند یسوع کی محبت سے, خدا باپ کی محبت سے وہ خدا کو پیار کرتا ہے اور اس کے لوگوں کو بھی کیا کرتا ہے, پیار کرتا ہے. یہ ہے روح القدس کا کام کہ ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور روح القدس کے بغیر وہ محبت جو خدا چاہتا ہے ہم محبت کر نہیں سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, تیسری بات کیا لکھی ہے, خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ کس طرح کی دی ہے, محبت اور تربیت کی روح دی ہے. یہ بھی ایک کام ہے. تربیت کون کرتا ہے, پاک روح. اور پاک روح کا کام کیا ہے, پاک روح کا کام کیا ہے, تربیت ہماری کرتا ہے. اور بھی کام ہے, اور ایک کام پاک روح کا ہے, وہ ہماری کیا کرتا ہے, تربیت کرتا ہے. اور اس کے لیے جو انگلش ورژن میں متن میں نے دیکھا الفاظ, وہ لکھا ہے تربیت کا مطلب ہے سیلف ڈسپلن, خود نظم و ضبط میں رہنے والا, سیلف کنٹرول, سیلف ایموشنز رکھنے والا. یعنی مطلب کیا, یہ پاک روح کی سادہ طریقے سے سکھاتا ہوں. پاک روح کا ایک کام ہے یہ بھی, جب وہ ایماندار کے اندر آتا ہے تو پاک روح اسے قوت دیتا ہے کہ وہ سیلف ڈسپلن ہو جاتا ہے. اور سیلف ڈسپلن
यानी नज़्म व ज़ब्त में रहने वाला ही रूहुल कुद्स की मामूरी से भरा हुआ है। और जो रूहुल कुद्स की मामूरी से नहीं भरा, इसका मतलब यह है कि वो नज़्म व ज़ब्त में रहने वाला नहीं होता, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। क्योंकि रूहुल कुद्स ऐसी कुव्वत नहीं है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन ना हो और किसी तरह के नज़्म व ज़ब्त को पसंद ना करते हों। आपने देखा होगा बड़े बड़े ईमानदार, जहाँ डिसिप्लिन की बात आती है, जहाँ नज़्म व ज़ब्त की बात आती है, जहाँ तरबियत की बात आती है, वो कहते हैं हम रूह से मंबूर हैं, पड़े हार जाओ, सानू टच ना करना, असी कोई नज़्म व ज़ब्त नूं नहीं जानदे हो की हुंदा है, कोई असी तरबियत नूं नहीं जानदे हो की हुंदी है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं साडा, असी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चलांगे। मुझे ये बताओ कि जो सेल्फ कंट्रोल नहीं, और बाइबल मुकद्दस में से मैंने पढ़ को सुनाया है, नज़्म व ज़ब्त में रहने वाला नहीं, निज़ाम व तरबियत में रहने वाला नहीं, क्या रूहुल कुद्स की मामूरी की ये निशानी है कि वो बगैर नज़्म व ज़ब्त के, लेकिन जब पाक रूह हमारे अंदर होगा वो हमें कुव्वत देगा कि हम नज़्म व ज़ब्त में रहें। वो हमारी क्या करेगा? तरबियत। पीछे हमने क्या सीखा पिछले इतवार में? कि वो हमें सिखाता है, वो हमें तालीम देता है। और यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? कि वो हमारी तरबियत भी करता है। तालीम और तरबियत, रूहुल कुद्स रूहानी तौर पर तालीम और तरबियत भी हमारी करता है, जहां हमारी जरूरत है तरबियत की। और पूरी दुनिया में दुनियावी तौर पर भी यही है। अगर तालीम हो तो तरबियत ना हो तो फिर मुआशरे में बिगाड़ है। रूहानी तौर पर भी यही है। आप देखें, दुनियावी तौर पर मिसाल से आप सिखाता ताकि आप समझ जाए। दुनिया में बहुत ज्यादा तालीम बढ़ गई है, एजुकेशन आसमान तक पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी आसमान तक पहुंच गई है, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से आज देखें बिगाड़ है, एहतराम नहीं है, मुहब्बत नहीं है, एक दूसरे की फिक्र नहीं है। मुआशरे में, खानदानों में, कौमों में इतना बिगाड़ है। वेस्टर्न में जाए तो और ज्यादा बिगाड़ है, एशिया में आए और ज्यादा बिगाड़ है। रिश्तों में एहतराम नहीं, मुहब्बत नहीं, तालीम है। इंसानी रिश्तों की जो कदरें हैं वो नहीं, लेकिन तालीम है। बच्चों और वालिदैन में तालीम के, तरबियत के फुकदान में आज देखें बच्चे, अगर हम, ये रूहानी तौर पर भी बात है, कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत नहीं करते तो बच्चे कभी भी तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, अखलाकियात से गिरे होंगे। आज क्यों नौजवान तबका, बच्चे जो हैं, वालिदैन से भी और खुदा से भी दूर हैं? क्योंकि वालिदैन ने तरबियत पर ध्यान कम दिया है। बेशक तालीम पर ध्यान देना है, लेकिन हमने जहाँ तक मुमकिन है हमने तरबियत देनी है। और पाक रूह का काम क्या है? पाक रूह का काम भी क्या है? वो रूहानी जिंदगी में तालीम भी देता है और तरबियत भी करता है। वो कलाम भी सिखाता है और तरबियत भी करता है कि हम नज़्म व ज़ब्त में रहें। रूहानी आदमी को ऐसा
रूहानी, पता नहीं रूहानी आदमी को क्या कंसेप्ट है लोगों का रूहानियत का, कि रूहानी आदमी कोई नज़्म ज़ब्त नहीं, नो, कोई तरबियत नहीं, नो। बल्कि तरबियत अगर आप किसी को करें तो बल्कि लोग क्या हो जाते हैं, कहते तरबियत की गल ना करो, और कोई गल और कोई गल करो। हाँ? एक शख्स मुझे बता रहा था कि एक मुहावरा है कि पता नहीं वो क्या मुहावरा है कि रोटी देने वाला और मत देने वाला मंदा, रोटी देने वाला चंगा, मत देने वाला कहने अकल दी गल ना करो भाई, साडे नाल रोटी लियाओ। अकल दी गल ना सिखाओ, खाना लियाओ। ऐ ते काम है चंगा, मत नू की करना है, अकल नू की करना है, तरबियत नू की करना है, नज़्म ज़ब्त नू की करना है, सेल्फ कंट्रोल नू छड्डो, असी होइए ना, ये खाना ले आओ, रोटी ले आओ। और जिन्हें रोटी दे देती है, वाह जी वाह, वो ते आसमान ते सितारा बने, स्टार। ते जिन्हें को मत दी गल कर दी थी, तरबियत दी कर दी थी, उन्हें क्या नहीं भी तेरा सितारा थले ही है, ये गर्दश गर्दश। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि खुदा के पाक रूह का काम क्या है, क्या करना, तरबियत करता है वो। और ये पाक रूह की मामूरी की एक निशानी है। पाक रूह की मामूरी कि सिर्फ वो ही नहीं निशानी जो ज़ाहरी तौर पर हम देखते हैं, ज़ाहरी तौर पर बहुत चीज़ें आप देखते हैं, है ना। चलो आप समझदार ही हो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि लोग तरबियत की बातों का भी मैं सिखा रहा हूँ, क्या बनाते हैं, बड़ा बुरा बना जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ज़ाहरी तौर पर जिस्म के लिहाज से, ओए होए होए, ऐ रूना ममूर, ऐ रूना ममूर, ऐ रूह दी ममूरी। पता नहीं रूह दी ममूरी नू समझते की नहीं कि बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये रूह दी रूह को उसकी मामूरी तरबियत है। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं कि पाक रूह हमें तरबियत करे, कितने लोग चाहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल हो पाक रूह की वजह से, कितने लोग कहते हैं हम नज़्म ज़ब्त में रहेंगे पाक रूह की वजह से। इसलिए आपके लिए तालियां। हम छोटी छोटी बातों में नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना चाहते हैं, कहते क्यों भाई, लेकिन पाक रूह की मामूरी की ये एक बहुत बड़ी निशानी है। हालेलुया। फिर आगे एक और बात सिखाता हूं, फिर हम दुआ करते हैं, क्योंकि आप खुदा के पाक कलाम को सीखने वाले हैं और भूखे प्यासे हैं। एक बात हम और सीखते हैं, खरूज की किताब में हवाला लिख लें, पढ़ता नहीं, 31वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक, खरूज की किताब। और यहां पर लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि खुदा ने ऐसे लोगों को रूहुल कुद्स से मामूर किया। ये पढ़ लें, लिख लें, घर जाके पढ़ लें, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है वो बताता हूं। ऐसे लोगों को रूहुल कुद्स से मामूर किया कि जो हुनर में माहिर हों और इल्म और फहम से मामूर हों, और वो
खुदा के घर और हैकल को बनाएं। ऐसे कारीगर, हुनरमंद, पाक रूह से लिखा है, खुदा ने मामूर किया ताकि वो खुदा के घर को एक खूबसूरत अंदाज में, हुनरमंदी के साथ, महारत के साथ खुदा के घर को वो बनाए। पाक रूह का एक ये काम है कि पाक रूह जब हम में आता है तो वो हमें हुनरमंदी सिखाता है, हमारे अंदर महारत पैदा करता है। जो उसने नेमत दी है, जो उसने बख्शिश की है, जो उसने तोड़ा दिया है, पाक रूह का एक काम ये भी है कि वो हमें महारत उसमें दे देता है और हुनर सिखा देता है। वरना पाक रूह के बगैर कोई टैलेंट हो, कोई बख्शिश हो, उसमें हुनर मंदी नहीं आ सकती। ये याद रखें। एक मिसाल ले लें, परस्तिश की ले लें कि अगर रूहुल कुद्स की मामूरी होगी तो परस्तिश करने वाले में महारत और हुनर भी आ जाएगा कि वो सिर्फ सिंगर नहीं रहेगा बल्कि आर्टिस्ट बन जाएगा। लिखने की बख्शिश है, उसमें भी हुनरमंदी आ जाएगी, लेकिन किसके वसीला से? रूहुल कुद्स के वसीला से। खुदा ने चुने, रूहुल कुद्स से मामूर किया ताकि हैकल की तामीर करें, रूहुल कुद्स की मामूरी के साथ, हुनरमंदी के साथ, महारत के साथ। तो जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो वो हमें महारत देता है, वो हमें आर्टिस्ट बना देता है। जो भी शोभा उसने हमें दिया है उसमें चमक पैदा होती है, खूबसूरती पैदा हो जाती है, क्योंकि पाक रूह हमारी क्या करता है? मदद करता है। फिर इल्म और फहम भी आ जाता है। इल्म का मतलब है जानना, लेकिन फहम का मतलब क्या है? विजडम। इल्म और फहम जब पाक रूह से मामूर होते हैं, हुनरमंदी देता है और उस काम के लिए, उस शोबे के लिए जो खुदा ने हमें करने के लिए दिया है, अपनी हैकल के लिए। आज वो हैकल क्या है? उसकी अपनी कलीसिया है, और कलीसिया के लिए जो उसने आपको तोड़ा दिया है, कलीसिया के लिए जो आपको बरकत दी है, कलीसिया के लिए, हैकल के लिए जो उसने आपको चुन लिया है, उसमें आपको इल्म भी देगा, फहम भी देगा, हुनर भी देगा। फहम क्या है? विजडम। इल्म होना और बात है, विजडम दूसरी बात है। हमें हिकमत की क्या है? जरूरत है। इल्म की भी जरूरत है और हिकमत की भी क्या है? और हिकमत कैसे मिलती है? पाक रूह की मामूरी से। और खुदावन, मैं आखिर में आपको बता रहा हूं, खुदावन अपनी हैकल के लिए यानी कलीसिया, लिखा है तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और खुदा ने जो भी आपको नेमत दी है, जो भी बरकत दी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रोमियो का खत 12वां बाब पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि नेमतें तरह तरह की हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं। खुदा की बादशाहत में, खुदा की कलीसिया में काम करने के लिए जो उसने हमें तोड़ा दिया है, तरह तरह का तोड़ा, तरह तरह की नेमत,
तरह तरह की बख्शिश, तरह तरह का गिफ्ट अता फरमाया है। और पाक रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमें हुनरमंदी भी देता है, वो हमें हिकमत भी देता है, वो हमें इल्म भी दे देता है, और फिर खूबसूरत हैकल तैयार होती है। हालेलुया। और जब खुदा ने पाक रूह से उनका ममूर किया, हुनरमंदी दी उनके शोबों में, तो ऐसी खूबसूरत हैकल और खुदा का घर तैयार हुआ कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आज तक नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पाक रूह से क्या थे? मामूर थे। आज भी उसकी बादशाहत में, उसकी आलमगीर कलीसिया में पाक रूह की मामूरी की ज़रूरत है कि हम उसके हैकल को क्या करें? तामीर करें, आगे बढ़ाएं हिकमत के साथ, रूह कुद्दुस की मामूरी के साथ, और इल्म के साथ, और हुनर के साथ, और फन के साथ, ताकि उसकी कलीसिया खूबसूरत बनती चली जाए। क्योंकि इफ्सियों के खत में 4 बाब में लिखा है कि खुदा ने कलीसिया को दे दिए, रसूल दे दिए, नबी दे दिए, मुबश्शिर दे दिए, चरवाहे यानी पास्टर दे दिए, उस्ताद बना के दे दिया, और फिर क्या लिखा है? गौर से सुने, ताकि, इसका मकसद भी साथ है, हुनरमंदी दी ताकि हैकल तमीर हो। और यहाँ क्या लिखा है? लफ्ज लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम हो। और फिर आगे क्या लिखा है? मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की पाए। वो हमें बरकतें देता है, पाक रूह से मामूर करता है, हुनरमंदी देता है, हमें आर्टिस्ट बना देता है, यानी हर शोबे में। लेकिन उसका मकसद क्या है? खुदा ने पुराने अहदनामा में हैकल बनाने के लिए उनको रूह से मामूर कर दिया। खुदा ने हमें रूह से मामूर किया है, और उसका काम क्या है? ये इफ्सियों के खत में लिखा है, जो मैंने आपको अल्फाज बताए हैं, ताकि मसीह का बदन, मसीह का बदन कौन है? कलीसिया क्या करे? कलीसिया तरक्की करे, बदन तरक्की करे, उसकी बादशाहत फैले। ਅਸੀਂ कहने साड़ी तरक्की, कदी कदी कहने हैं ना, आज ये छड़ क्यों गया, साड़ी तरक्की नहीं पींदी। मैं क्या ओके ओके, खुदा को दूर क्यों चले गया जी? साड़ी तरक्की नहीं होंदी, असीं ते अपनी तरक्की करनी है, असीं ते अपनी तरक्की वास्ते आए हैं, असीं खुदा को अपनी तरक्की वास्ते आए हैं, असीं खुदा दी इबादत अपनी तरक्की वास्ते करने आ, असीं गवाही ओदी अपनी तरक्की वास्ते देने आ, असीं ओदी परस्तश अपनी तरक्की वास्ते देने आ। लेकिन खुदा ने तरह तरह की खिदमत दी है कलीसिया की तरक्की के लिए। कलीसिया तरक्की करे, उसकी बादशाहत फैले, उसका कलाम फैले। लेकिन जब कलीसिया तरक्की करती है, ये बाइबल में से मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, तो फिर आप भी तरक्की करते हैं। कलीसिया के लिए, खुदा के घर के लिए, उसके बदन के लिए, उसकी बादशाहत के लिए हमें सोचें क्या खुदा ने गिफ्ट दिया है, क्या तोड़ा दिया है, इस्तेमाल में लाएं ताकि खुदा का बदन तरक्की करे। हालेलुया। उसकी तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि ये सारी खिदमतें यीशु मसीह ने दी ही इसलिए हैं कि उसका बदन क्या करे? तरक्की करें, ना कि कुछ लोग कलीसिया की तनज़ली का सबब बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तरक्की को उन्होंने पसंद ही नहीं आती, और तरक्की नूं अपना विचों कहते ने कर लैने आ तुहाडा काम बई,
कहीं है ना इस दुनिया में कि नहीं है? कलीसिया दी मजमूई तरक्की नू की करते ने? हाँ जी, रोक देंदे ने। ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਖੀਲੀਆਂ कलदरों कलाम सुन के उधरों बाहर। मैं जनरल बातें करता हूँ, आप नहीं करते, लेकिन मुझे पता है वीडियो में भी लोग सुन रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? कलीसिया च लड़ाइयाँ पैदा करनियाँ, कलीसिया च झगड़े पैदा करने, कलीसिया च कहना मेरी तो तरक्की नहीं होंदी, असी की करिए दूसरे की तरक्की नूं। मेरी तो तरक्की नहीं होंदी, असी की तरक्की नूं करना। कलीसिया जिथे मर्जी जाए, भाई मेरा ना जड़ा ना उच्चा होना चाहिए। मेरी तरक्की आसमाना तक पहुंचे, कलीसिया नूं भावें नुकसान पहुंचे। कलीसिया च कई लड़ाई पाने वाले, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप कर रहे हो या आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। मैं जनरल बातें सिखा रहा हूँ। क्यों भी ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ जी होता है, कहते नहीं होता है। लेकिन पाक रूह जब हमें मिलता है तो वो किसकी तरक्की चाहता है? फन किस लिए देता है? हुनर किस लिए देता है? खुदा की बादशाहत फैले, खुदा का बदन क्या पाए? तरक्की करे। और पाक रूह के काम ये हैं। पाक रूह की मामूरी की सादा ज़बान में बता दूं, पाक रूह की मामूरी के ये निशानात हैं। कलीसिया के लिए सोचना, उसकी बादशाहत के लिए सोचना, कलीसिया की तरक्की के लिए सोचना, और हर तरह का खौफ जो है उसे दूर करके दिलेरी से आगे बढ़ना, और तरबियत याफ्ता होना, और तरबियत को हासिल करना, और नज़्म व ज़ब्त में रहना। और क्या हमने सीखा है? इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या सीखा है हमने? पाक रूह का काम क्या है? मोहब्बत करना, तरबियत हासिल करना, नज़्म व ज़ब्त में रहना। और क्या सीखा हमने? हैं? हाँ, अगर पाक रूह हमारे अंदर है तो ये काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बरूनी हरकतां नाल नहीं, बल्कि अगर आप किसी को कहते हैं बड़ा ही पाक रूह नाल ममूर है, तो जिस्म दियां खाली हरकतां नाल नहीं, है ना? ये फल नजर आएंगे। और अगर आप ये फल चाहते हैं, कोई भी जो सुन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? कहना चाहिए खुदावंद हमें पाक रूह की और ज्यादा क्या दे? मामूरी दे। हमें और ज्यादा पाक रूह से क्या कर दे? मामूर कर, ताकि पाक रूह के काम हमारी जिंदगी से जाहिर हों। कितने लोग चाहते हैं और पाक रूह की मामूरी लेना, ताकि पाक रूह के काम हम में जाहिर हों। हालेलुया। हम पाक रूह को वेलकम करते हुए तालियां बजाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुछ को खुश आमदीद कहेंगे, और खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे पाक रूह की बख्शिश के लिए जो उसने हमें बख्शा है, ताकि उसकी कलीसिया कामिल भी हो, खूबसूरत भी हो। हालेलुया। कलीसिया को कामिल करने के लिए उसने बुलाया है, ताकि और कामिल होती चली जाए। गॉड ब्लेस यू। आप खुदावंद के बड़े प्यारे हो, और खुदावंद के कलाम को सीखने वाले हो, और खुदा के कलाम को प्यार करने वाले हो। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू।